اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، بس صرف اور صرف 10 منٹ اور اس کے بعد سلام، اور سلام کے بعد پھر محفل سماع ہوگی۔ آئیے آپ سبھی حضرات درود پاک بآواز بلند سنا دیں۔ دو تین شعر تحت میں، اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک واقعہ سرکار عالم پناہ کا بیان کرنا ہے، تاکہ کم از کم جو لوگ نہیں جانتے ہیں کچھ انہیں سمجھ میں آئے کہ حضور وارث پاک کی ذات کیا ہے، نسبت کیا ہے، مشن کیا ہے۔ وہاں تک پہنچانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اگر لوگوں نے کھایا ہے تو حق بھی ادا کرنا چاہیے، لہذا ہم نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا، ہمارے گاؤں والوں نے بھی کھایا ہے، تو حق ادا ہو جائے۔ آئیے چند شعر پہلے تحت میں حاضر کر دوں کہ نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا مسلمان کہاں سے لاؤں، مسلمان کہاں سے لاؤں، اور تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خان کہاں سے لاؤں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خان کہاں سے لاؤں۔ اور کہا کہ آپ کے آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، آپ کے آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، میں دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں، میں دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں۔ اور بالکل آخری شعر کہ جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں۔ یہ تھے جناب مولا کائنات کے والد محترم حضرت عمران، یعنی لقب حضرت ابو طالب۔ بہت سے حضرات ابھی ہمارے نصرت بھائی شعر پڑھ رہے تھے، نہیں نبی بھائی شعر پڑھ رہے تھے، تو اس میں حضرت عمران کا نام آیا، لیکن وہ لفظ عمران یوں ہی آ گیا، تو میرے ذہن میں خیال ہے کون سے عمران، کس عمران کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سمجھ لیں کہ یہ ہمارے بازار کے عمران نہیں، دلی والے عمران نہیں، گونڈا والے عمران گونڈوی نہیں، کٹرا والے عمران نہیں، شیخن پوروا والے عمران نہیں، پکا کنواں والے عمران نہیں، بلکہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے والد محترم، یعنی علی کائنات کے والد محترم حضرت ابو طالب جن کا لقب ہے، انہی کا نام عمران ہے۔ نام ہے عمران، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں گاؤں میں نام کچھ ہوتا ہے، گاؤں والے کہتے کچھ نہیں، تو یوں اور لوگ ہوتے ہیں جو کہنے لگتے ہیں، لیکن وہاں کہنے کا ایک مسئلہ تھا، مصلحت تھی۔ جیسے کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے آپ کے گھروں میں جو ماں بہنیں ہوتی ہیں، ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ محلے کی عورتیں آتی ہیں تو پوچھتی ہیں بہنی کہاں ہوئی گوا، کہیں فلانے کبو کہاں ہے، یا ان کے امک پاس کوئی جائی تو کہیں بہنی گڑسو کبو کہاں ہے، گیا گیسوا کا ابو کہاں ہے، تو گیاسو سے پہلے بٹیے ہی، لیکن ان کو کوئی نہیں کہتا۔ جو پہلا بچہ جو ہوتا ہے گھر میں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، اسی کے نام سے منسوب کر کے محلے والے اسے پکارتے ہیں، اور مائیں بھی نام شوہر کا نہ لے کر، چاہے لڑکا پہلے ہوا ہو چاہے لڑکی پہلے ہوئی ہو، وہ بھی یہی کہتے فلانے کے ابو کہاں ہیں۔
फलाने के अब्बू यहाँ आओ, फलाने के अब्बू यहाँ आओ। और उसके बाद पता चला 1 दर्जन है, लेकिन उन 1 दर्जनों का नाम नहीं लिया जाता। पहले हजरत इमरान के घर में हजरत अली के बड़े भाई का नाम हजरत तालिब था, उनकी वजह से उनका नाम अबू तालिब पड़ा, यानी तालिब के अब्बू। और सैयदे कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौलाए कायनात को क्या कह के पुकारती थी? अबुल हसन कहाँ है, यानी हसन पाक के बाप अबुल हसन कहाँ हैं? अबुल हसन तशरीफ लाएं। जब सैयदा नाम लेती हैं तो फरमाती हैं अबुल हसन कहाँ है? हसन के बाप। और जब इनकी सास यानी सैयदे कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सास हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद पुकारती है तो कहती है अबू तालिब कहाँ है, तालिब के अब्बा कहाँ है? तो अब आप हजरात इस बात को समझ जाइएगा, नाम है इमरान, लक़ब है अबू तालिब। ये एक सीधी बात से आप बिल्कुल गांव वाले के हिसाब से ये वजाहत हो गई, लिहाजा आप हजरात समझ जाइएगा कि इमरान कौन है। तो अपने अपने गांव में न फंस जाओ भैया। तो बहरहाल ये इमरान की बात रही। अब आइए उसी सिलसिले से एक आगे बढ़ के मैंने जैसे कहा था बड़ी जल्दी के साथ एक वाक़या पेश करना चाहता हूं, और वो ये है कि मौलाए कायनात की औलाद यानी पोते हमारे आपके पीर हुजूर सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाह ज़िक्र हो पोते हैं सरकार मौलाए कायनात के पोते सरकार हुजूर आलम पनाह वारिस पाक। अब ये वारिस पाक को ये बाबा लोग उन्हीं के रंग में रगे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। लोग बहुत से ऐसे भी हैं मास्टर साहब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनका मजाक भी उड़ाते हैं, भैया ये कौन में कपड़ा जाए, ये कौन बारिया है, ये का भगल बनाया घूमती हैं, ऐसे भी कहने वाले मिले हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं मास्टर रामासरे साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ। बहुत से ऐसे भी हैं कि जब इनको देखते हैं तो आपकी बिरादरी के लोग कहते हैं बाबा नमस्ते। बहुत लोग कहते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है, कहते बाबा नमस्ते। और बहुत से हमारी बिरादरी के लोग जो समझते हैं वो कहते हैं बाबा अस्सलाम वालेकुम। और जो नहीं जानता ये क्या हुआ भैया, तो आप हजरात इस बात को समझ लीजिए कि हुजूर सरकार आलम पनाह जब पैदल सफर आपने फरमाया, हज के लिए आप तशरीफ ले गए, तो रास्ते में एक एक मकाम पड़ता गया। यानी कि जब आप यहाँ से चले देवे शरीफ से तो पहले कहाँ पहुँचे, तो आप कहेंगे दिल्ली पहुँचे महबूब इलाही के यहाँ। फिर वहाँ से आप जब आगे बढ़े तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ, और वहाँ से जब आप आगे बढ़े तो पहुँचे अजमेर शरीफ सरकार गरीबुल नवाज के यहाँ। अब कहिए तो वहाँ वाला एक वाकया बयान कर दूं, इजाजत है? अब आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। जब वहाँ हुजूर आलम पनाह सरकार वारिस पाक पहुँचे तो पहले ही से आपके पीछे एक चोर लग गया था, और चोर जो लगा था तो जो कीजिएगा क्या कह रहा था, चोर लग गया था। तो अब वो चोर से अपने आप को हर कोई बचाता है, अपने सामान को हर कोई बचाता है। और चोर लगा किस बात पे था, हुजूर वारिस पाक ने जो जूती पहनी हुई थी नालैन, हमारी आपकी जबान में जूती है, तो वो कामदार जूती थी, उसमें सोने और चांदी के तार से उस पर नक्काशियां बनी हुई थी। उसने सोचा अगर यार ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, इसलिए पीछे पीछे वो हो लिया, पीछे पीछे हो लिया, कहीं उसको मौका मिला नहीं। जब सरकार गरीब नवाज के यहाँ हुजूर वारिस पाक पहुँचे तो वहाँ क्या लिखा हुआ था, जूते चप्पल बाहर उतार के अंदर आए। तो अब तो भाई मजबूरी है, उतारना है। आपने सोचा कि यार पीछे से चोर लगा हुआ है, अगर यहाँ छोड़ता हूँ तो चोर लेके चला जाएगा, इसलिए आपने अपने जूते को, अपनी जूती को, अपने नाले को उतारा और अपने एक रुमाल में लपेट के बगल में दबा लिया। अब बगल में दबा के आप हाजिर हो गए। जब अंदर आस्ताने में आप हाजिर हुए तो वो चोर पीछे से पहुंचा और उसने आके वहां के खादिम से कहा, तुम लोगों ने बाहर लिख दिया है यहाँ कोई जूता चप्पल लेके ना आए, ये देखो मियाँ लेके आए हैं।
तो कहाँ से लेके? कहा छुपा के लेके आए हैं, जरा उसमें देखो, पता लगाओ। और जब वहां पता लगाने की बात आई, आके खादिमों ने पूछा क्यों मियाँ आप यहाँ जूता चप्पल लेके आ गए? अरे कहा कौन कहता है? अरे कहा मुझे खबर मिली है। कहा नहीं मियाँ ऐसी बात नहीं है। तो कहा फिर इसमें क्या है? अब मैं कहा यार ये 2 रोटी है, लो तुम ही खा लो, हम नहीं खाएंगे। इतना कह के जैसे रुमाल को बाहर फेंका, बजाए उसमें से 2 जूते के 2 रोटियां निकल के बाहर ढुलकने लगी। ये है हुजूर आलम पनाह की ज़बान पाक, ये हुजूर वारिस पाक की ज़बान पाक, जो कह दे वो हो जाए। जूते को रोटी कह दे तो रोटी हो जाए, और अगर रोटी को बाबा जूता कह दे तो वो जूता हो जाए। बहरहाल मेरे भाइयों, बस बड़ी जल्दी से गुजर रहा हूँ। हुजूर आलम पनाह की ज़ात पाक को आप हजरात तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की आप हजरात कोशिश कीजिएगा। सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाह ज़िक्रुहु फिर वहाँ से रुखसत हुए, और जब वहाँ से रुखसत हुए तो जूता तो रोटी बना के छोड़ दिया। वो भी बड़ा परेशान हो गया, क्या करूँ यार, अब क्या करूँ, ये तो रोटी बन गई। अच्छा जब आप अंदर से फारिग होके बाहर आए तो उससे कहा मियाँ वो रोटी कहाँ गई? अरे कहा हम भर पाए तुझे, पता नहीं का कह लिया था तू, अब बड़े जादूगर हो। अरे उनके नाना सरकार मदीना पर जादूगर का इल्जाम लगा। और हुजूर वारिस पाक ने कहा भी था एक मौके पर, जब हजरत शेख अब्दुल रज़ाक बांसवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बंधे हुए रस्से से अपने आप को यूं ही निकाल लिया, और बाद में ये बात मशहूर हुई, सरकार वारिस पाक वहां तशरीफ ले गए तो आपने फरमाया था सुनो मेरे दादा निकल गए थे, लाओ जरा देखूं मैं भी मदीने वाले की औलाद हूं या नहीं हूं, जरा मुझे भी बांधो। और उन्हें भी बांधा गया। बांधने के बाद वो भी निकल गए, कहा हाँ मैं तो उन्हीं का औलाद। अब लोगों ने कहा हुजूर आप भी जादूगरी करते हैं? वारिस पाक ने कहा था हाँ ये जादू तो मैंने मदीने वाले से सीखा है। सुभान अल्लाह, ये कैसा जादू है जो मदीने वाले कर गए, मदीने वाले सिखा गए अपनी औलादों को, बहर अपने चाहने वालों को भी सिखा गए हैं। न सिर्फ औलादें बल्कि इसलिए मैंने कहा चाहने वाले जो उनके हो जाते हैं उनको भी वो जादू सरकार जो है वो सिखा देते हैं। यह जादू नहीं होता बल्कि ये होती है करामत, लेकिन लोगों ने नाम दे दिया जादू का। बहरहाल बड़ी तवज्जो के साथ बड़ी जल्दी के साथ मैं आप हजरात से आगे गुजर रहा हूँ। अब वो ये कि सरकार आलम पनाह ने उससे कहा अच्छा बैठ जा तू यहाँ, ये ले ये जूती है। अरे कहा तो रोटी है। कहा अच्छा लपेट के फिर दिया, कहा खोल के देख। और जैसे उसने खोल के देखा तो जूती आ गई। अच्छा कल इसको लेके बैठे रहना, कहीं जाना नहीं, हम जाते हैं और जाके वापस आते हैं, फिर तुम्हारा काम कर देंगे। उसने सोचा चलो भाई ना जाओ कहीं बैठे रहो, जब आएंगे हमारा काम हो जाएगा। अब ये सोच रहे थे वो बैठे बैठे, लेकिन हुजूर सरकार आलम पनाह तो वहाँ से निकल गए मदीने शरीफ को, मक्के शरीफ को। तो बस जहाँ लाना चाहता था वहाँ आप हजरात को जल्दी से लाना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब सरकार अजमेर शरीफ से बगदाद शरीफ पहुँचे, बगदाद शरीफ जब हुजूर वारिस पाक पहुंचे और जब अंदर हाजिरी दी, तो हाजिरी देने से पहले ही सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम से कहा था सुनो हिंदुस्तान से मेरा शहजादा आ रहा है, हिंदुस्तान से मेरा शहजादा आ रहा है। और जब वो आए तो उसे साफा नहीं बांधना का हुजूर आपके यहाँ का तो रिकॉर्ड है कि जो आता है अगर आप यहाँ से कुछ नवाजने वाले होते हैं तो उनके सर पे साफा बांधा जाता है, उन्हें जुब्बा पहनाया जाता है। लेकिन ये आप क्या कह रहे, कहा ना साफा न पहनाना, जुब्बा न पहनाना, बल्कि उसे 2 चादर देना और उसका रंग होना चाहिए जर्द, उसका रंग होना चाहिए जर्द। कहा हुजूर ये जर्द लिबास? कहा अब मौलाए कायनात का जिक्र आया, सरकार सैयदना बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था इसलिए कि ये मेरे दादा मौला अली का कलर है। चूँकि अपने यहाँ की मिट्टी, वो हम लोग नीचे इलाके में रहते हैं तो यहाँ की मिट्टी अक्सर भूरी और काली हुआ करती है, लेकिन ज़रा सी आप उपरहर के इलाके में जाते हैं तो आपको मिट्टी पीली मिलती है, और यही कलर है
मिट्टी का असल में कलर यही है, पीली मिट्टी है। इसलिए मिट्टी के कलर को हुजूर वारिस पाक ने और सरकार गौसे पाक ने और आपके तमाम अजदादों ने पसंद फरमाया। इसीलिए हुजूर वारिस पाक जब हज करके वापस आए थे, अब छोड़ रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए कि आपको ये कलर वहां से अता हुआ है, समझ गए होंगे लोग, बस इसलिए सारी बातें छोड़ो। जब वापस आए थे हुजूर सरकार आलम पनाह, तो आपने चारपाई छोड़ दिया, आपने चौकी पर लेटना बैठना छोड़ दिया। लोगों ने कहा हुजूर बड़ी मोहब्बत से बिछाया है, बड़ी मोहब्बत से लगाया है, हुजूर हम लोग नीचे बैठेंगे, आप ऊपर तशरीफ फरमा हो जाएं। कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ तर्क कर दिया। यूं ही जमीन पर एक चटाई बिछा के आराम फरमा हो जाते थे। जब लोगों ने बहुत जिद किया और सरकार वारिस पाक से पूछा हुजूर आप ऐसा क्यों करते हैं? जब हम लोग बिछा देते हैं किसी तरह आपकी मन्नत समाजत करके गद्दे को या चादर को, तो जब हम लोग आते हैं तो क्या देखते हैं कि आपने चादर या गद्दे को समेट कर अपने पैताने कर दिया। सरहाने वो भी नहीं करते थे हुजूर, पैतियाने कर दिया है। आप यूं ही हाथ का तकिया लगा के क्यों आराम फरमा हो जाते हैं? हुजूर वारिस पाक ने उस वक्त फरमाया था, ऐ क्या करूं मैं, जब मैं करबला मोहल्ला पहुंचा, जब मैं नजफ अशरफ पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरे अजदाद फर्शे खाक पर अपनी हाथ के तकिया किए हुए लेटे हैं। तब से मैंने ये तय कर लिया कि आज के बाद से मैं भी न तख्त पे बैठूंगा न लेटूंगा, न मुझे कुर्सी की जरूरत होगी। इस तरह से हुजूर आलम पनाह वारिस पाक ने अपने आप को जमीन वाला बना दिया। जो कलर मौलाए कायनात के यहाँ से अता किया गया था, उस कलर को पूरी तरह से वारिस पाक ने अपना लिया। बस ये वजह है कि वारिस पाक के जो चाहने वाले एहराम पोश फुकरा हजरात होते हैं, वो जमीन को ज्यादा पसंद करते हैं और वो जमीन पर रहा करते हैं, जमीन पे बैठते हैं। बस यही वजह है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, कि अभी जो आप लोगों से कहा गया था, ये राजू भाई ने कहा कि यार एहराम पोश नीचे बैठे हुए, आप लोग ऊपर बैठे हुए हैं। ये कलर लिबास का नहीं है, बल्कि आप जान लीजिए कलर मौलाए कायनात के घर से अता हुआ है। हम नहीं जानते कि आप हमारी इज्जत करें, हम नहीं कहते कि आप राजू बाबा की इज्जत करें, हम नहीं कहते कि आप रहमत शाह सलामत शाह वगैरह वगैरह की आप इज्जत करें, लेकिन ये जो कलर है इनके जिस पर, इसका लिबास, इस लिबास का एहतराम कीजिए, इसकी इज्जत कीजिए। इसलिए कि हुजूर वारिस पाक ने ये भी फरमा दिया, सुना अगर मेरा एहराम किसी खूंटी पर टंगा हो तो वो खूंटी भी वाजिब ताज़ीम है। बस बातें बहुत हो चुकी हैं और शायद जो कुछ पूरा करो नहीं, वापस लिया ये वापस ला रहे हैं। इजाजत है आप लोगों की तरफ से? तो मेरा इजाजत है। देखिए बाबा हजरात का तो ख्याल ये है कि आप आगे बढ़ जाइए और आगे इसको पूरा कर दीजिए, लेकिन गुलाम मोहम्मद भाई ये वापस ला रहे हैं कि सरकार वारिस पाक के यहाँ सरकार गरीब नवाज की छठी कैसे मनाई जाती है। तो आइए छठी पर, अब न सिर्फ छठी बल्कि दो वाक़या बयान करूँगा। हुजूर वारिस पाक का आप मकाम देखें, उनकी अजमत देखें और उनके चाहने वालों का मकाम देखें। क्या हुआ, पहले ये एक मर्तबा मैंने पढ़ा है, देवे का चांद किताब का नाम है, उसमें लिखा हुआ है कि एक मर्तबा पंजाब के एक इलाके में दुर्वेशों की बैठक हुई, उसमें तमाम लोग जमा थे। उसी में सरकार वारिस पाक के चाहने वाले, जिनको हम लोग बड़े प्यार से हाफिज प्यारी कहते हैं, वो भी वहीं थे। हाफिज प्यारी भी उसी में थे। अब उसी में होते होते उसके बाद लोग जब खाना खा चुके तो जिक्र अस्कार में लग गए। तो अब हर तरह के फकीर थे, हर सिलसिले के लोग थे, इसलिए किसी ने अपना जिक्र बुलंद किया, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी ने सिर्फ हक 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 कहा, किसी ने हक हूँ कहा, किसी ने कुछ अपना अपना जिनका जो कुछ भी विरद था उन्होंने अपने अपने वज़ाइफ के एतबार से जिक्र करना शुरू किया। हाफिज प्यारी ने कहा, मजा है प्यारी का बाकी सब झोल, मजा है प्यारी का बाकी सब झोल। बस जैसी कहा, बस उस एक दुर्वेश ने कहा, ये क्या कह रहे हो, मजा है प्यारी का, अब कहो मजा है प्यारे का।
उनका भी अपना ख्याल दुरुस्त है। उन्होंने सोचा यार ये तो सरकार के शान में प्यारी प्यारी कर रहे हैं, लेकिन उनका नजरिया अलग था। कहो मजा है प्यारे का बाकी सब झोल। कहा चुप, ये लिखा हुआ है। हाफिज प्यारी ने उनको कहा चुप, मजा है प्यारी का बाकी सब झोल। जैसे इतना कहा और उनको खामोश किया, तारीख में लिखा हुआ, मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ कि उसके बाद से उनकी जबान चुप तो चुप, वारिस पाक नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाफिज प्यारी ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफिज प्यारी का ये मकाम है कि अगर वो कह दें किसी दुर्वेश को, अब हमारे जैसे लोगों को नहीं, एक दुर्वेश को कर चुप, तो वो भी खामोश हो, मुंह बंद। अब 6 महीना इसी तरह उनके गुजर गए। वहाँ तो महफिल ख़त्म हो गई। उसके बाद इत्तेफाक से देवे शरीफ में हुजूर आलम पनाह वारिस पाक के यहाँ भी एक मरतबा दुर्वेशों की दावत की गई। जब यहाँ दुर्वेश आए, खाना खाने बैठे, तो हाफिज प्यारी ही सबका हाथ धुला रहे थे। हाफिज प्यारी साहब सबका हाथ धुला रहे थे और सरकार आलम पनाह बैठे बैठे देख रहे थे। जब उस दुर्वेश के पास पहुंचे हाफिज प्यारी उनका हाथ धुलाने के लिए, सरकार ने मुस्कुरा के कहा, क्यों प्यारी, क्या हो गया भाई, इनका तुम्हारा क्या मामला है? कहा है पंजाब के इलाके में, सरकार यहाँ देवे में उनकी खबर ले रहे हैं, भाई तुम्हारा इनका क्या मामला है? कहा हुजूर हमारा इनका कोई मामला नहीं, ये तो उन्होंने वहां कहा था। कहा जब से तुमने कह दिया चुप, तब से ये खामोश है, ये इनकी गोयाई चली गई है, गूंगे हो गए हैं। तो कहा तो मैं क्या करूं सरकार? कहा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ जो मेहमान आया हो, हर तरह से उसकी खिदमत और मेज़बानी होनी चाहिए या नहीं? कहा हुजूर होनी चाहिए। तो कहा भाई इनकी ज़बान भी वापस कर दो, यही तो सिला रहमी है, यही तो मेरे नाना ने सिखाया है। कहा ना हुजूर, इन्होंने हमारे महबूब के शान में जुमला इस्तेमाल किया था गलत, इसलिए मैं ना मानूंगा। कहा भाई कैसे मानोगे? कहा ये कहें हुजूर की मजा है प्यारी का, इसी के साथ इनकी जबान आएगी, वरना सारी जिंदगी ये गूंगे रहे। और जैसे ही कहा तो सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अम्मा मियाँ कह भी दो, क्या फर्क पड़ता है, आशिक की बात है, आशिक की बात है। और इसी को साबिर पाक ने फरमाया था कि आशिक के मिजाज पर दुनिया का निजाम है, मगर शर्त है कि आशिक तो हो। आशिक हो तो फिर दुनिया का निजाम उसी के मिजाज पर होता है। तो आपने फरमाया अरे भाई कह भी दो, आशिक है, आशिक की बात है, कह दो एक मरतबा। उन्होंने एक मरतबा सांस लिया, हाथ धुलवा रहे हैं, बात चल रही है, सांस उन्होंने लिया और अंदर से इरादा किया कि मैं कहूँ मजा है प्यारी का। जैसे इरादा किया बस उनकी जबान खुली और उन्होंने कहा हाँ मजा है प्यारी का, बाकी सब छोड़। सरकार मुस्कुरा पड़े, कहा हाफिज जी तुम्हारा काम हो गया, दुर्वेश तुम्हारा भी काम हो गया। तो एक तो मसला ये हो गया भाई। अब मैंने कहा था 2 वाकया बयान करूंगा, गुलाम मोहम्मद भाई वापस मुझे ला रहे थे। एक तो ये हो गया, अब दूसरा जल्दी से वो सुन लीजिए कि सरकार वारिस पाक के यहाँ सरकार गरीबुन नवाज की छठी मनाई जाती है। 6 रजब को सरकार गरीब नवाज की छठी होती है, लेकिन वो छठी सरकार वारिस पाक के यहाँ वहाँ 8 बजे होती है, यहाँ 10 बजे होती है। नहीं तो वहाँ अजमेर शरीफ में 8 बजे कुल होता है और यहाँ 10 बजे किया जाता है। क्यों किया जाता है? हजरत बाबा फैजू शाह गए छठी करने, अजमेर शरीफ पहुँचे। भाई भीड़ बहुत होती है, आप लोगों ने अक्सर देखा, जो गए हैं वो देखें, जो नहीं गए हैं उन्होंने नेट से आजकल देखा होगा कि बड़ी भीड़ होती है, और जो लोग गए हैं वाकई वो समझ जाते हैं कितनी भीड़ होती है। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे बड़ी भीड़ बड़ी भीड़ बड़ी भीड़। अब क्या हो रहा है कि बाबा फैजू शाह धक्का खा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, इधर से आया उधर से धक्का, उधर से बहराम कोश अपनी आप को बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए, लिबास को बचाते हुए गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको धक्के पे धक्के, धक्के पे धक्के। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, 1 मिनट यार, 1 मिनट अभी रुका सलाम बस होए वाला है, सलाम 5 मिनट नहीं यार, हो जाता। जैसे ही तवज्जो, इधर तवज्जो, क्या कह रहा था मैं? धक्के पे धक्का। अब जब धक्के पे धक्का खाते रहे, किसी तरह से आस्थाने तक पहुंचे, तो बाबा फैजू शाह कहते हैं आस्थाने की तरफ गौर से देखकर हम लोगों को तो आस्थाना दिखता है, लेकिन बाबा फैजू शाह को सरकार गरीब नवाज नजर आ रहे थे।
اور دیکھ کے کہا کیوں میاں ہم آئے تھے آپ کی چھٹی منانے یا دھکا کھانے؟ ہم یہاں چھٹی منانے آئے تھے، دھکا کھانے نہیں آئے تھے۔ ادھر سے سرکار غریب نواز بھی مسکرائے ہوں گے، مسکرا کے انہوں نے پوچھا ہوگا تو کیا چاہتے ہو؟ کہا میاں اب نہیں آؤں گا یہاں دھکا کھانے۔ تو کہا پھر چھٹی؟ کہا تم کو آنا پڑے گا دیوے شریف میں، وہاں تمہاری چھٹی ہم منائیں گے۔ جیسی کہا تم کو آنا پڑے گا۔ ایک اللہ والے ہیں، اللہ والا اللہ والے کا دل نہیں توڑتا۔ بس فوراً حضور سرکار غریب النواز نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میاں جاؤ، اب وہیں آئیں گے، وہیں چھٹی کرنا، لیکن یہ بتاؤ ذرا وارث پاک سے تو پوچھو کہ بھائی چھٹی کب ہوگی ہماری؟ ہمارے ہاں بڑے مہمان ہوتے ہیں، 8 بجے یہاں ہوتی ہے۔ انہوں نے اسی وقت طے کر دیا کہ 8 بجے آپ کے ہاں قل ہو جاتا ہے، 10 بجے ہم لوگ دیوے میں آپ کا قل کریں گے، آپ کو وہاں آنا ہوگا۔ جب وہ حضرت بابا فیضو شاہ واپس تشریف لائے، سرکار علم پناہ نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے، کہا میاں کیا کر کے آ گئے ہو؟ کیا کر کے آ گئے ہو؟ کہا حضور کچھ نہیں، وہ دھکا بہت لگا تھا بابا۔ اچھا کہا ٹھیک ہے تو وعدہ بھی کروا لیے ہو؟ کہا وعدہ تو کروا لیا ہے۔ کہا تو آئیں گے؟ کہا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اتنا ایمان ہے کہ علی کا لال جو بھی ہوتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ باقی علی کے لال آپ ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں۔ سرکار علم پناہ نے مسکرا کے فرمایا، فیضو شاہ تم سے غریب نواز نے وعدہ کیا ہے اور ہم بھی وعدہ کر چکے ہیں ان سے، وہ یقیناً چھٹی کو 10 بجے دیوے میں آئیں گے، ان کی چھٹی یہی منائی جائے گی۔ یہ ہے حضور عالم پناہ کا کرم اور یہ ہے حضور عالم پناہ کا فیض، لیکن بس شرط یہ ہے کہ ہم دل سے مانیں، دل سے مانیں، دھوکہ فریب سے دور ہو جائیں، کسی کو نہ ستائیں، کسی کا دل نہ توڑیں، اس لیے کہ یہ فقیر کا کام نہیں ہے، فقیر کا کام یہ نہیں ہے۔ فقیر تو وہ ہوتا ہے جو شاہانہ انداز میں رہے، فقیر تو وہ ہوتا ہے جو سارے لوگوں کے طعنے سن کر بھی اپنے اندر جذب کر لے، لوگ کچھ بھی کہیں وہ اپنے اندر سمو لے، پھر وہ ہوتا ہے فقیر۔ بس میرے بھائیوں اتنی سی بات تھی، میں نے آپ حضرات تک پہنچایا۔ حضور سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی یہ محفل پاک ہے، لہذا آپ حضرات اس بات کو جان لیں کہ اگر ان کی محفل ہو رہی ہے تو بڑے ہی ادب کا مقام ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات ہے، ہمارا آپ کا سب کا، ہم اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے یا جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ ذاتیں تشریف لاتی ہے، ایمان ہے۔ تو اگر یہ ذاتیں تشریف لاتی ہیں اس وقت بتائیے کہ ہم بیٹھے ہوں کرسی پر اور اللہ والے آ کے کھڑے ہوں تو یہ توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے ہم لوگ زمین کو پسند کرتے ہیں تاکہ اگر تشریف لے آئیں ہم غلاموں کی محفل میں تو کم از کم اتنی بات ضرور ہو، اتنا احترام اتنا ادب قائم رہے کہ سرکار آپ تشریف لائے تو ہم بھی آپ کی عیادت میں، ہم بھی آپ کی محبت میں، ہم بھی آپ کے استقبال میں با ادب ہاتھ باندھ کر ہم بھی پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں ہماری طرف سے کوئی توہین نہیں ہوگی، اس لیے اس نظم کو قائم کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات جب دوبارہ کبھی بھی ہو محفل، اور ایک بات بہت کھری میں کہنے جا رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو لگے، لیکن عادت ہے میں کیا کروں، وہ یہ ہے کہ حضور سرکار عالم پناہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میری محفل کرو، میرا قل کرو، میرے لیے لوگوں کو بلاؤ، لیکن اگر نہ ہو انتظام تو پریشان نہ ہونا، ایک گلاس پانی میرے حضور میں رکھ دینا، میں وہ بھی قبول کر لوں گا۔ تو سرکار علم پناہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ قرضہ لیا جائے یا کہیں سے مانگا جائے یا کسی کا کچھ اور کیا جائے اس کے بعد یہ محفل کی جائے، یہ وارث پاک کا فرمان نہیں ہے۔ اللہ والوں کا، نہ صرف وارث پاک کا بلکہ کسی بھی اللہ والے کا فرمان نہیں۔ اس لیے اگر اس طرح کی کوئی محفل ہوتی ہے تو پھر اس پر وہ بے مزہ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں یہ نصیحت اور یہ محبت دونوں باتیں ہمارے آپ کے درمیان ہو چکی۔ مولا کریم سے التجا ہے کہ رب کائنات اس عظیم ذکر جمیل کے صدقے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں اس محفل پاک کو اور ہمارے آپ کے ذکر و اذکار کو، ہمارے آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سرکار حضور عالم پناہ کے صدقے وسیلے سے ہماری آپ کی مغفرت فرمائیں اور ہم کو آپ کو صحیح اور سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ الہی آمین۔
واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں, سلام پیش کر. یا نبی